वंदे मातरम। 75वें स्वाधीनता दिवस की अनेक बधाई और शुभकामनाएं। Namaskar and joyous Independence Day greetings. ये हमारी आज़ादी का जश्न है, हमारा स्वाधीनता दिवस। यूं तो ये जश्न हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार बात जरा अलग है। हमने आज़ादी के 74 वर्ष पूरे किए हैं और 75वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। ये हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव है। 15 अगस्त की सुबह जब देश जागता है तो अपने मस्तक पर आज़ादी का गौरव अलग ढंग से दमकता हुआ महसूस करता है। इस दिन देश की मिट्टी अलग रंग में निखरी हुई नजर आती है। असंख्य देशभक्तों और राष्ट्रभक्तों के त्याग और बलिदान के बाद हमने आज़ादी पाई थी और सन 1947 में पहली बार यहां लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था। आज अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री यहां ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। There are moments in a nation's history when time places before it one aim, one goal, one opportunity to which everything else, however high, noble and important it might sound, has to be sacrificed. The 15th of August 1947 dawned, bearing one such opportunity for India. Independence and freedom became a reality through the struggle, sweat and sacrifice of thousands. Today, we proudly celebrate Independence Day. Well, all of us could celebrate this day in different ways, but the predominant sentiment that colors all celebration is one of joy, reverence and respect. On the 15th of August 2021, as the sun rises over the historic and regal Red Fort, a gentle sunlight bathes the air and a beautiful soft wind on a clear sunny day caresses all that is in sight. We witness a very special Independence Day celebration. India enters its 75th year of independence. And in a short while from now, Prime Minister Narendra Modi will arrive here for the flag hoisting and customary address to the nation. पंद्रह अगस्त का दिन यानी हमारा स्वाधीनता दिवस, हमारा राष्ट्रीय पर्व, हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। देश की आज़ादी के 75 वर्षों को समर्पित अमृत महोत्सव की विधिवत शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी वर्ष 12 मार्च को अहमदाबाद में की जा चुकी है। और इस अमृत महोत्सव में देश के अलग अलग क्षेत्रों में देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण आयोजन किए जा रहे हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने का मौका देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है, जिसमें देश और दुनिया के करोड़ों भारतवासी पूरे उत्साह से अपना योगदान दे रहे हैं। So today, for every Indian living not only across the length and breadth of this beautiful country, but also across the myriad time zones of our deeply interconnected world, it is a day of celebration. And yes, we celebrate many things. A determination to stay united and committed to the values which form the bedrock of our independence struggle. We also celebrate our coming together in the face of adversity. And of course, we celebrate the people who serve this vibrant, tolerant, complex, paradoxical, and incredible nation. Of course, we do have challenges that we face today, and surely more are waiting in the wings. But that's the inevitable story of progress. उषा काल को, प्रातः समय को अमृत काल या अमृत वेला भी कहा जाता है और लाल किले की प्राचीर पर ओलंपिक खेलों में भारत का मान बढ़ाने वाले ओलंपिक खिलाड़ी इस समय लाल किले की प्राचीर पर नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया पहली बार एथलेटिक्स में, भारत का गौरव, भारत का मान बढ़ाया और आज सम्मान स्वरूप ये सभी खिलाड़ी लाल किले के
इस प्रांगण प्राचीर पर The enclosures slowly filling up with special invitees, foreign dignitaries, and here across the ramparts we have 550 NCC cadets drawn from the 3 different wings. And as we move into our 75th year of independence, we foreground history, hope, and our home, a land that has held in its embrace a civilization that is as dynamic as it is diverse, as ancient as it is modern, and as simple as it is layered. With color, culture, and creativity being her glorious ornaments, she never ceases to amaze anyone who connects with her free spirit. भारत का स्वाधीनता दिवस एक बेहद खास मौका, 75वां स्वाधीनता दिवस हमारा, जिसमें ओलंपिक खेलों में, टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। 550 एनसीसी कैडेट्स जो कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विंग से चुने गए हैं, स्कूली छात्र, वो यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं इस राष्ट्रीय पर्व का। और साथ ही बड़ी संख्या में खासो आम जनता जो कि आज यहाँ पर मौजूद है। स्वाधीनता दिवस समारोह के प्रसारण को देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने और उसे उत्कृष्ट स्वरूप देने के लिए दूरदर्शन हमेशा प्रयासरत रहा है। इस बार के समारोह का जीवंत, सजीव और गुणवत्तापूर्ण प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए भी दूरदर्शन ने विशेष प्रबंध किए हैं। भारत का 75वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास और अनूठा है। लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए 30 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। इनमें वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम भी शामिल हैं। रैम्पार्ट पर 3 PTZ कैमरों के माध्यम से विहंगम दृश्य दिखाए जाएंगे। समारोह स्थल पर क्रिएटिवली प्लेस्ड किए गए 4 जिमी जिप कैमरे डायनामिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। दूरदर्शन का विश्व स्तरीय प्रोडक्शन पहली बार बगी कैम और रोप कैमरे के इस्तेमाल से और भी खास बन पड़ा है। रैम्पार्ट पर लगे 2 360 डिग्री कैमरों से ऑनलाइन ऑल इंडिया रेडियो की कमेंट्री से जुड़ने वाले दर्शकों को पहली बार एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। 120 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक क्रेन पर लगा कैमरा फ्रंटल शॉट्स की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। राजघाट आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहां भी मल्टी कैमरों के क्रिएटिव एंगल के जरिए हर गतिविधि को कैप्चर करने की व्यवस्था की गई है। तीन मल्टी कैमरा HD OB वैन और 4 HD अपलिंक वैन डिप्लॉय किए गए हैं। एक प्रोडक्शन कंट्रोल रूम खास तौर पर इस बड़े आयोजन को बेहतरीन बनाने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं।
मुख्य कार्यक्रम स्थल लाल किला और महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट को ऑप्टिकल फाइबर के साथ दूरदर्शन के स्टूडियो से स्पष्ट ऑडियो और क्रिस्टल क्लियर वीडियो के लिए जोड़ा गया है। इसके अलावा बैकपैक कनेक्टिविटी के जरिए भी लाल किला और राजघाट को दूरदर्शन केंद्र से जोड़ा गया है। दूरदर्शन के 100 से भी ज्यादा क्रिएटिव लोगों की टीम पिछले 3 महीने से भारत सरकार के अलग अलग विभागों के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में लगी है। स्वाधीनता दिवस समारोह के इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता हैं प्रदीप सतीजा, डायरेक्टर ऑफ सिनेमेटोग्राफी हैं चंद्रशेखर अरोड़ा, तकनीकी प्रभारी हैं अभिषेक अग्रवाल और इस मेगा प्रसारण के ओवरऑल इंचार्ज हैं पीके सुभाष।